Let's we start with our chapter number 2. In chapter number 2, we have done up to the uh, pollen grain. Means we start with the uh, page number 24, topic 2.2.2. Look, that page number is 24 and topic 2.2.2.2 means what second chapter second topic and second topic second point. So that is the pistil, megasporangium, ovule and embryo sac. The pistil, megasporangium, means ovule, and last that one is the embryo sac, means whatever develop inside it is called as the embryo sac. So this is the our today's discussion. Let's we start with it. Here the pistil, as we know that in the flowering plants, the flower we have done, this is the female reproductive organs. Female reproductive organs, always we start the drawing with that. This is the thalamus. Here in this female reproductive part, this is stigma, style, this is ovary, this complete is known as pistil. In this pistil, this basal part, swollen part, is known as the ovary. In this ovary, here placenta, just above the placenta here ovule. That ovule is known as the megasporangium. That the name of ovule is megasporangium. Look, in male, this anther, it produces the pollen grain. That pollen grain is microspore. So this is the microsporangium. Here in this ovule, female reproductive cells are produced. Hence this ovule is known as the megasporangium. Megaspore containing producing part. Hence it is known as the megasporangium. In this megasporangium, this ovule inside it, this female reproductive cells part is present. That is embryo sac, because in future embryo will develop inside it. Why embryo will develop inside it? Simple. This part contain female reproductive cell. So here female reproductive cell is present inside the ovule, means megasporangium. So this female reproductive cell, female gamete, turns into embryo. Hence this complete part is known as embryo sac. So look here on the understandings by our textbooks words. The gynoecium represents the female reproductive part of the flower. This is also known as the gynoecium. This gynoecium is representing the female reproductive parts of the flower. The gynoecium may consist of a single pistil, this complete single pistil. This is called as the monocarpellary, or may have more than one pistil. It is known as the multicarpellary.
When there are more than one pistil, they may be fused together. They are known as syncarpus or may be free. When they are free, they are called as the apocarpus. Look, in our figure, they have given this whole thing in our textbook, but simply I represent here. So look here, this is the monocarpellary. Now look here, more than one pistils are present, multicarpellary. This is the thalamus. Look, more than one carpellary are the pistils are present, so it is known as the multicarpellary. Here these all pistils are separate, they are not fused one. If they fuse, this ovary part will fuse. When these fused and form a one, but actually they are the more than one. So this is known as syncarpus. So look here, this is the apocarpus. एपोकार्पस पहले था, ये फ्यूज हो गया तो उसको बोलेंगे syncarpus. Go to the page number 25 and figure. The very first figure is that pistil that very simply we are representing like this. हिबिस्कस प्लांट क्या दिया है और उसका पिस्टिल का जो स्टिग्मा है वो स्टिग्मा ऐसा देखो ऐसा ब्रांचेगा to receive the pollen grain from various direction. Look, second figure is given of the multicarpellary syncarpus. देखो सब फ्यूज है, ऊपर के स्टिग्मा भी फ्यूज है, ओवरी भी फ्यूज है. पापावर मल्टीकार्परी एपोकार्पस गाइनेसियम माइकेलिया. और माइकेलिया में देखो ऐसा जो स्टॉक हैगा वो स्टॉक के ऊपर जस्ट अबव द स्टॉक दीज ऑल आर समथिंग ऐसा कुछ दिया है. दीज ऑल आर व्हाट? दीज ऑल आर पिस्टिल. बोलो एवरी पार्ट में ये ऊपर का है ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और नीचे का ओवरी है. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. They are not fused one. So they are called as apocarpus. Now go to the theory. Each pistil has three parts: stigma, style and ovary. Stigma, style, ovary. अब देखो ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी है तो हमको यहाँ से जो समझना है, we will try to understand ovary. We will try to understand this ovary. The placenta is located, the style is elongated slender part beneath the stigma. Beneath the stigma, ये स्टिग्मा के नीचे elongated slender part. The basal bulge part of the pistil is the ovary. Basal bulge part of this pistil is what? Ovary. Inside the ovary, it is the ovarian cavity. Means this is not empty. This is not filled with something. इसका थोड़ा एम्प्टी है तो ओवेरियन कैविटी. लोक्यूल. द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी. यानी ये लोक्यूल है, उसके अंदर ये प्लेसेंटा रहता है. एंड यू हैव स्टडीड द प्लेसेंटेशन. दिस प्लेसेंटा tissue is to support the ovule, and the arrangement of this placenta is of the various type. याद आना चाहिए, ऐसा पूरा ओवरी था 11th में, तो यहाँ से मिडल में रहता है ऐसा स्टॉक जैसा फ्री सेंट्रल. फिर अगर जो यहाँ से ऐसा ऐसा होके आता हैगा उसके ऊपर ओव्यूल अटैच होता है. मार्जिनल,
ऐसे सब उसके टाइप थे, अभी मैं उसको रिपीट नहीं करता हूँ। सो लुक, दिस इज द प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा पे क्या लोकेट होएगा? ओव्यूल। तो जैसा प्लेसेंटे का अरेंजमेंट होगा ऐसा ओव्यूल का अरेंजमेंट होगा। दैट्स व्हाई इन 11th स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड द अरेंजमेंट ऑफ द placenta ovule is known as placentation. Why? Because placenta are arranged on the ovule. Sorry, ovules are arranged on the placenta. Sorry, placenta are arranged on the ovule. क्या बोला मैं? Just forget it. The ovules are arranged on the placenta. ओव्यूल्स किसके ऊपर अरेंज है? प्लेसेंटा पे। ओव्यूल प्लेसेंटा पे अरेंज है तो क्या होता है? बोलो क्या होता है? जैसे प्लेसेंटा के अरेंजमेंट बदलेगा ऐसे ओव्यूल का भी अरेंजमेंट कैसा होगा? चेंज होता रहेगा। वो ओव्यूल का अरेंजमेंट चेंज होता रहेगा तो उसके लिए बोलो यहाँ पे हम उसको प्लेसेंटेशन बोलते हैं। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। Recall the definition and types of the placenta that you have studied in class 11. Arising from the placenta are the megasporangia. What is the meaning of the megasporangia? Ovule. ये प्लेसेंटा से इसके ऊपर ये आया है ओव्यूल। बोलो ये ओव्यूल को बोलेंगे हम मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया क्या बोलेंगे उसको? मेगास्पोरेंजिया। Commonly called ovules. The number of the ovules in ovarian cavity may be 1. बोलो पूरे ovarian cavity में सिंगल ओव्यूल। एग्जाम्पल दिया है, बोलो कौन सा है? व्हीट, पेडी, मैंगो, बिकॉज दैट ओव्यूल टर्न्स इनटू सीड। यस, वंस अगेन यू शुड बी केयरफुल, दिस ओव्यूल मेगास्पोरेंजिया विल टर्न्स इनटू सीड। क्यों? तो बोलो इसके अंदर यहाँ पे मेगास्पोर रहता है, मीन्स क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल बनेगा एम्ब्रियो। उसके लिए तो इसके अंदर के वो पार्ट को बोलते हैं एम्ब्रियो सेक। तो बोलो ये ऑन फर्टिलाइजेशन दिस टर्न्स इनटू एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा? एम्ब्रियो। तो बोलो क्या होगा? ये जो था वो पूरा क्या बनेगा? सीड बनेगा। और ये पूरा जो ओवरी की बोल थी वो क्या बनेगा? फ्रूट बनेगा। व्हाट डज इट मीन? जिसके अंदर एक ओव्यूल होगा उसमें एक सीड बनेगा, एंड दोज हु हैव मोर देन वन ओव्यूल दे विल हैव द मोर देन वन सीड। एंड मेनी पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स एक्सेट्रा। चलो अब हम किसको स्टडी करेंगे? हम इसको किसको? मेगास्पोरेंजियम। बरोबर समझना, दिस इज द मेगास्पोरेंजियम। बोलो ये क्या आएगा? पूरा मेगास्पोरेंजियम है। ओव्यूल, लेट अस familiarize ourselves with the structure and typical angiosperm ovule. एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में हम नहीं स्टडी करते। क्यों नहीं करते? जिम्नोस्पर्म में ओवरी नहीं होती है, ये ओवरी बाहर की एब्सेंट होती है। These ovules are directly arranged on the lip. मेगास्पोरोफिल कहेंगे वो लिप को। क्या बोलेंगे? मेगास्पोरोफिल। ऐसा ही स्ट्रक्चर रहेगा, उसके अंदर भी एम्ब्रियोस्पेक मीन्स फीमेल गैमिट, और फीमेल गैमिट जिसमें है वो फिर आगे जाके फर्टिलाइजेशन होके क्या बनेगा? एम्ब्रियो। तो उसको इतने को बोल देंगे एम्ब्रियोसेक, और ये इतना पूरा पार्ट बनेगा सीड। सीड के सराउंड में फ्रूट नहीं बनेगा क्योंकि ओव्यूल नहीं, ओवरी नहीं है। यहाँ पे ओवरी है तो ये फ्रूट बनता है और ये सीड बनता है और अंदर एम्ब्रियो बनता है। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी इन एंजियोस्पर्म, नॉट इन द जिम्नोस्पर्म। Let us familiarize ourselves with the structure of the typical angiosperm ovule. The ovule is a small structure attached to the placenta by means of stalk called funicle. देखो आपने देखा होगा कि मैंने ये जो फिगर ड्रॉ करी तो ये फिगर में ये था प्लेसेंटा, और ये मेगास्पोरेंजियम मीन्स ओव्यूल। तो आई हैव नॉट ड्रॉन दिस ओव्यूल डायरेक्टली ऑन द प्लेसेंटा, बट इट हैज द वन स्टॉक। द स्टॉक इज नोन एज द फ्यूनिकल। बोलो क्या बोलेंगे उसको? फ्यूनिकल। क्या बोलेंगे उसको? फ्यूनिकल।
द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हिलम। तो अब क्वेश्चन आता है हिलम किसको बोलेंगे, तो ये फ्यूनिकल यहाँ पे ओव्यूल के साथ जो अटैच करता है वो डॉट को बोलेंगे हिलम, हाइलम और हिलम। देखो अब इतना पार्ट मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। दिस इज द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा पे से स्टोक आया, वो स्टोक को बोलेंगे फ्यूनिकल, और ये फ्यूनिकल का ये एंड हैगा जो मैं ऐसा डार्क करता हूँ जहाँ से ओवरी अटैच है। तो ये ओवरी अटैच जो है उसको ना बोलेंगे हाइलम और हिलम। दस हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। किसको किसको, वो ये ओव्यूल एंड ये फ्यूनिकल दोनों को ये जो रिप्रेजेंट करता हैगा वो जंक्शन है, दोनों का क्या हैगा, जंक्शन। Thus, hilum represents the junction between ovule and funicle. Each ovule has a one or two protective envelopes called integuments. उसके ऊपर ऐसा कवरिंग रहता है प्रोटेक्टिव, वन और टू। तो देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, आई हैव ड्रॉन टू। बोलो ये जो है, बोलो इतना पार्ट क्या आएगा, ये हाइलम। हाइलम के नीचे का ये स्टोक आएगा, उसको ने क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल। और यहाँ से पूरा बोलो ये जाता है, ये अपने टिश्यू, कौन सी टिश्यू, प्लेसेंटा में। दिस इज द प्लेसेंटा, दिस इज फ्यूनिकल, दिस इज हाइलम। हाइलम जस्ट अबव अटैच्ड टू हाइलम, दिस इज ओव्यूल। दिस ओव्यूल हैज टू प्रोटेक्टिव कवरिंग इंटेग्यूमेंट्स, वन और टू। अब स्टूडेंट बोलते हैं सर यहाँ पे डिफरेंट फिगर दिए, कुछ ये डिफरेंट नहीं दिए, ये जो ओव्यूल ऐसा के ऐसा ही ड्रॉ किया हैगा, हाँ उसके अंदर का ये नीचे का ऐसा इंटेग्यूमेंट क्लियर नहीं दिया हैगा, और अंदर का ये अभी एम्ब्रियो सेक भी ड्रॉ कर दिया है, बरोबर इतना। एंड दिस ये है, ये क्या हैगा, हिलम के साथ में जो पूरा फ्यूनिकल ने वो सब आता है वो ऐसा ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ का फ्यूनिकल, सॉरी ऊपर का प्लेसेंटा, फ्यूनिकल, हिलम। अब ये ऐसी फिगर पूरी ऐसी ड्रॉ करते हैं। यू हैव टू ड्रॉ दिस फिगर ओनली इन एग्जाम, बट टू हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग वी विल रिप्रेजेंट लाइक दिस। ये पार्ट ऊपर के बोलते हैं, यहाँ नीचे ड्रॉ किया है। The megasoryngium, let us familiarize ourselves with the structure of the typical angiosperm ovule. The ovule is a small structure attached to the placenta by means a stalk called funicle. The body of the ovule fuses with the funicle in the region called hilum. Thus, hilum represents the junction between ovule and funicle. Junction between ovule and funicle. Each ovule has a one or two protective envelopes called integuments. ये दो इसको क्या बोलेंगे, इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स एनसर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट द टिप वेयर स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। ये पूरा जो अंदर का पार्ट सेल से फील्ड था, अभी उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स बना नहीं है, जब उसको ने बोलेंगे क्या, न्यूसेलस। जब इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल बन जाएगा तो इसको ना बोलेंगे एम्ब्रियो सेक। समझ में आता है। हमने पहले से एम्ब्रियो सेक किया, बट बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिस इज द न्यूसेलस। इंटेग्यूमेंट ए सर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट द टिप वेयर द स्मॉल ओपनिंग इज माइक्रोपाइल। तो देखो अब ये जो था, ये पूरा ओव्यूल है, मेगास्पोरेंजियम है, बोलो ये जो है वही चीज, इंटेग्यूमेंट ये सब, ये ऊपर का कवरिंग, बोलो इसको ने क्या बोलेंगे, स्मॉल ओपनिंग को माइक्रोपाइल। बोलो क्या हमने बोलेंगे, माइक्रोपाइल। ऑपोजिट द माइक्रोपाइल एल द चलाजा, ये जो पार्ट है बेजल पार्ट, इट इज नोन एज द चलाजा। माइक्रोपाइल एंड
चलाजा है, रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। चलाजा किसको रिप्रेजेंट करता है? बेसल पार्ट। एनक्लोजेस विथ इन द इंट्रोगेमेंट इज अ मास ऑफ सेल कॉल्ड न्यूसेलस। अभी हमने वो बोला ना, इंट्रोगेमेंट के अंदर ये पूरा जो उसको ना क्या बोलेंगे? न्यूसेलस, मास ऑफ सेल्स। Cells of the nucellus have abundant reserve food material. Why it is the reserve food material? Simple, because they will convert into turns into the किसमें कन्वर्ट होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, गैमेट्स, एंड दैट गैमेट्स विल देन आफ्टर कन्वर्ट इनटू द एम्ब्रियो। तो उसके लिए फूड मटेरियल होता है। लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सेक और फीमेल गैमेटोफाइट। इसके अंदर यहाँ पे एम्ब्रियो सेक डेवलप होता है, यानी क्या? फीमेल का गैमीट। फीमेल का गैमीट अंदर न्यूसेलस में डेवलप होता है, मीन्स फीमेल गैमेटोफाइट। गैमीट को बनाने वाला गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सेक। एन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सेक फॉर्म ए मेगास्पोर। एक ही एम्ब्रियो सेक रहता है। अब मेगास्पोरेंजिनेसिस मीन्स यहाँ पे न्यूसेलस में फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमीट बनना, जिससे वो न्यूसेलस क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो सेक। द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरेंजिनेसिस। अब इसमें से दिस फ्रॉम आउट ऑफ दिस ऑल सेल ओनली वन सेल रिमेन एक्टिव एंड इट विल बी स्टेप बाय स्टेप टर्न्स इनटू द फीमेल गैमीट। बोलो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होके वो फीमेल गैमीट बनेगा। तो वो जो सेल है, ये सेल है, उसको क्या बोलेंगे? मेगास्पोर मदर सेल। बोथ सेम नंबर ऑफ सेल्स वेर देयर, न्यूसेलस filled with the reserve food material, but out of that only one will develop in complete part. Initially they will be known as the female gametophyte. वो फीमेल गैमेटोफाइट जो बनेगा फिर वो कन्वर्ट होगा काय में? एम्ब्रियो सेक में। Located in the nucellus is the embryo sac or the female gametophyte, and ovule generally has a single embryo sac from the megaspore. चलो, मेगास्पोरेंजी, the process of the formation of the megaspores from the megaspore mother cell। वो एक सेल एक्टिव रह गया, सिंगल सेल। बोलो, ये सिंगल सेल एक्टिव रह गया, इसको ने क्या बोलेंगे? मेगास्पोर मदर सेल। कॉल द मेगास्पोरेजिनेसिस है बनना। ओव्यूल जनरली फर्टिनेट ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। बोलो, कौन से रीजन में आता है? माइक्रोपाइलर रीजन। यहाँ पे नहीं होगा, चलाजा एंड पे नहीं, माइक्रोपाइलर रीजन पे होगा। ऑफ द न्यूसेलस, इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, लार्ज सेल, डेंस साइटोप्लाज्म, बरोबर है। तो अब ये जो है एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोपाइलर एंड पे, MMC, megaspore mother cell. It is a diploid. Why it is a diploid? Because it is not gamete. इसमें से गैमीट बनेगा, तो ये क्या आएगा? डिप्लॉइड आएगा। सिंगल मेगास्पोर टर्म मोनोस्पोरिक। बोलो, एक ही डेवलप होगा तो मोनोस्पोरिक। मेनी टाइम इट में हेपन के 2-3 ऐसे ज़्यादा डेवलप होंगे। What will be the ploidy of the cells of the nucellus and MMC? Both are the diploid. यहाँ के जितने भी MMC है वो भी डिप्लॉइड और न्यूसेलस भी क्या? डिप्लॉइड। द फंक्शनल मेगास्पोर एंड फीमेल गैमेटोफाइट। फंक्शनल में मेगास्पोर मदर सेल आएगा तो वो डिप्लॉइड होएगा, एंड एज वेल एज द फीमेल गैमेटोफाइट। पूरा गैमेटोफाइट भी कैसा आएगा? डिप्लॉइड। हाँ, इसमें से जब उसका गैमेट बन जाएगा तो वो कैसा रहेगा? हैप्लॉइड। Let us study the formation of the embryo sac in the little more detail. The nucellus of the functional megaspore divides mitotically to form two nuclei. कहाँ गया? Nuclei to move opposite poles. क्यों ऐसा हो गया? Sorry. चलो देखो, बीच में का हमारा रह गया फीमेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोरस मदर सेल। वंस अगेन कम ऑन द पेज नंबर 25, लास्ट लाइन। सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन, वो तो हमको समझ में आया। ऑफ द न्यूक्लियस, इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। एमएमसी अंडरगोस मियोटिक डिवीजन। हाँ, ये हम
छोड़ दिया था. This MMC undergo meiotic division. Why it is a meiotic division? Because these are the diploid. Meiotic division होगा reduction division, तो it will turns into haploid female gamete. So these undergo meiotic division and turns into 4 haploid cell, which are haploid. What is the importance of the MMC undergo the meiosis? अभी तो बोला था, क्या है इसका important? Because these nucellus MMC, these all are the diploid. So diploid is not satisfactory to maintain the chromosome generation to generation. Hence, it undergo meiotic division and turns into the haploid. देखो मैंने satisfactory ये अपने वर्ड्स यूज करा, क्यों? बिकॉज दिस वर्ड्स वॉज समवेयर आस्क्ड इन द वर्ड, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था. दिस मेथड ऑफ द एम्ब्रियोसेक female gametophyte in a majority of the flowering plants, one of the megaspore is functional while other 3 degenerate. बोल दो इसमें से ये जो बना उसको ने बोलेंगे मेगास्पोर. These are the megaspore. इनिशियली जो एक था वो क्या था? लार्ज डेंस साइटोप्लाज्म मेगास्पोर मदर सेल. आफ्टर मियोटिक डिवीजन दिस टर्न्स इनटू 4 सेल, दीज आर कॉल्ड एज द मेगास्पोर. इसमें से क्या होएगा? 3 डीजनरेट. बोलो डीजनरेट एंड 1 रिमेन एक्टिव. डीजनरेट हुआ वो भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है बिकॉज वो मियोसिस से बना है. डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, और ये जो इसमें से रह गया बोलो वो अपने क्या अपने बनेगा? फीमेल गैमेटोफाइट. Out of 3, 1 remain. It will be haploid. This is called monosporic because only out of 4 only 1 is developed, so it is called as a monosporic because 4 मेगास्पोर बने थे उसमें से 3 जनरेट हुआ, 1 मेगास्पोर एक्टिव रहा, so it is called as a monosporic. Let us study formation of the embryo sac in a little more detail. The nucellus of the functional megaspore divides mitotically. अब ये जो था बोलो जो एक्टिव रह गया था उसका डिवीजन कौन सा होगा? माइटोटिक डिवीजन. वाई माइटोटिक डिवीजन? सिंपल. बोलो क्यों? अगर जो माइटोटिक डिवीजन होगा तो ही तो क्या होगा? वो माइटोटिक डिवीजन होगा तो ही तो आगे आएगा बिकॉज ऑलरेडी वो हैप्लॉइड हैगा. The nucleus is functional megaspore divide mitotically to form 2 nuclei which move to the opposite plane. बोलो इसमें से सेल नहीं बनते, क्या बनते? 2 न्यूक्लियाई. 1 nuclei remain here, second remain here, second move to opposite pole, forming the 2 nucleate embryo sac. The 2 more sequential mitotical division. अब इसके 2 more mitotic division. तो माइटोटिक डिवीजन होगा तो फर्स्ट डिवीजन होने से दिस 2 टर्न्स इनटू 4 एंड सेकंड डिवीजन होने से दिस ऑल डिवाइड एंड इट दे टर्न्स इनटू 8. तो कितने न्यूक्लियाई बने? दीज आर नॉट सेल, दीज आर द न्यूक्लियाई. 8 न्यूक्लियाई इन दिस एम्ब्रियो sac region. It is interest to note that this mitotic division strictly free nuclear. Why free nuclear? Because they do not possess cell wall. Free nuclei. Cell walls are laid down. That is, nuclear division are not followed by immediately by cell wall formation. After the 8 nucleate cells walls are laid down, leading to the organization of the typical gametophyte or embryo sac. ये 8 बनने के बाद में इसके अंदर सेल वॉल बनेगा. जब सेल वॉल बनेगा ना एम्ब्रियो फीमेल गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट ओवर हो जाएगा, इसको बोलेंगे एम्ब्रियो सेक.
Observe the distribution of the cell inside the embryo sac. 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell walls. देखना ये जो है यहाँ पे 1, 2 and 3, ये पूरे एरिया के ये 3 remain towards the chalaza and one move to the center. Out of these 4, 3 remains here and 1 move to here. चलो, then after these form their own cell wall. These also form cell wall. These also form cell wall. But these two nuclei combinedly form a cell wall. तो बोलो क्या होगा? ये हैप्लॉइड था, ये हैप्लॉइड था, दोनों फ्यूज होकर डिप्लॉइड बनेंगे. जनरली डिप्लॉइड जब बनता है तो एक फीमेल गैमीट और एक मेल गैमीट से. यहाँ से तो जो फीमेल का न्यूक्लियाई न्यूसेलस मेगास्पोरेंजिस में आया वही दो फॉर्म होके वंस अगेन डिप्लॉइड बनता है. एंड दीज ऑल आर द हैप्लॉइड. 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell walls and organized into the cells. The remaining 2 nuclei, called the polar nuclei, are situated below the egg apparatus in the large central cell. ये जो 3 है उसको ने बोलेंगे एग एपरेटस. बोलो क्या बोलेंगे उसको? एग एपरेटस. और ये बीच में का जो आया उसको ने क्या बोलेंगे? सेंट्रल सेल. There is a characteristic distribution of the cell within the embryo sac. 3 cells are grouped together in the microphylar and considered the egg apparatus. ये 3. The egg apparatus in turn consists of 2 synergids and 1 egg cell. बोलो ऊपर के ये 2 रहते हैं उसको ने बोलेंगे synergids. बोलो ऊपर के ये these 2 cells are called as the synergids. बरोबर देखना अभी इसमें कुछ होगा. And this is the egg cell. ऊपर के first 2 synergids, this one is the egg cell. This combinedly all 3 are known as the egg apparatus. The egg apparatus in turn consists of 2 synergids and 1 egg cell. The synergids have special cellular thickenings at the microphylar tip called the filiform apparatus. ये synergids मैंने उसके तो यहाँ पे उसको रब करके मैंने क्या बरोबर देखना क्या होता है. These 2 synergids has the extra thickening towards the microphylar end. This thickening is known as the filiform apparatus. Highlight करो और क्वेश्चन मार्क रखो. Which play important role in the guiding the pollen tubes into the synergids. बोलो यहाँ से जब pollen tube enter होता है काय में से? माइक्रोपाइल. बोलो माइक्रोपाइल एंड में से जब ये pollen tube यहाँ पे एंटर होगा तो किसके टच में आएगा? बोलो किसके टच में आएगा? अभी तो आपने बोला था. बोलो किसके टच में आएगा? एक्स्ट्रा थिकनिंग. बोलो वो जो एक्स्ट्रा थिकनिंग है बोलो वो एक्स्ट्रा थिकनिंग को हमने अपने क्या आपने बोला था? बोलो क्या फिलिफॉर्म एपरेटस. बरोबर मेरी तबीयत बरोबर नहीं है तुम्हारी तो अच्छी है. Which play an important role in the guiding the pollen tube towards the synergies. 3 cells are at the chalazal end are the called antipodal. इसको बोलेंगे antipodal. The last central cell as mentioned earlier has 2 polar nuclei. बोलो इसमें 2 polar nuclei. Thus a typical angiosperm embryo sac at maturity have the 8 nucleated and 7 cell. बोलो कितने न्यूक्लियाई? 1 2 3 4 5 6 7 8. बट टोटल सेल्स 3 and 3 6 and 2. हुआ इतना. तब इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट टाइम करेंगे बिकॉज टुडे आई एम नॉट फीलिंग सो वेल. ओके बेस्ट ऑफ लक.